Assalamualaikum and what's up guys, hopes you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows, it might help them as well. So guys, today I will be discussing the documents that you need while you're going to apply or register yourself for any observership or internship program at any hospital, be it any hospital. Some basic things are very necessary for registration maybe, or you can say for applying there, or for showing or certifying yourself over there. ठीक है, so उसमें सबसे पहले तो आपके पास एक एप्लीकेशन लिखी होनी चाहिए. ठीक है, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट यू वांट टू ज्वाइन. ठीक है, अगर आप मेडिसिन यूनिट में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सर्जरी यूनिट में ज्वाइन करना चाहते हैं, गायनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पीड्स में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन करना है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, पहले मैं आपके साथ ना उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ. अच्छा, वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह की है. सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास, आपने इधर अपना एड्रेस लिखना है. देन यू हैव टू राइट द डेट. ठीक है, जिस डेट पे आपने जाना है फॉर अप्लाइंग या फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ एट दैट स्पेसिफिक हॉस्पिटल. ठीक है, फिर जिस हॉस्पिटल में आपने करनी है इंटर्नशिप या ऑब्जर्वरशिप, वहाँ का एड्रेस आपने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन का, लाइक मेरा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर ऑब्जर्वरशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम विद सर्टिफिकेट, तो मैंने ये सब्जेक्ट एंटर कर दिया. ठीक है, अब एप्लीकेशन आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे दैट रिस्पेक्टेड सर, I am writing to express my strong interest in pursuing an observership or internship program at New Hospital with the added motivation of obtaining a certificate upon completion. As an undergraduate student in MBBS, I am eager to gain hands-on experience and enhance my skills in a renowned healthcare institution like yours. During my academic journey, I have developed a solid foundation in medicine and pediatrics, which I believe would be further enriched by participating in your esteemed program. अब मैंने, क्योंकि मेडिसिन एंड पीड्स में अप्लाई करना था एट न्यू हॉस्पिटल, तो मैंने मेडिसिन एंड पीड्स का यहाँ पे जिक्र किया है. ठीक है, then I'm continuing here in this application by saying that I'm particularly drawn to New Hospital due to its good reputation, the opportunity to work alongside experienced professionals and contribute to the hospital mission aligns with my career goals and passion for healthcare. Upon completion of the program, I would like to request a certificate of completion which would be invaluable in showcasing my skills and experience to future employers or academic programs. I have attached my resume and academic transcripts for your review. I am available to start the program at your earliest convenience, and I am willing to commit 2 months, that is May and June, in medicine and pediatrics unit, 1 month for each unit. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my application and learn from your esteemed hospital. ठीक है, सो इस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इस फॉर्मेट पे आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं टू एनी हॉस्पिटल वेयर एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई. ठीक है, उसके बाद ये तो थी एक एप्लीकेशन जो ऑलमोस्ट आपको लिखनी ही लिखनी पड़ती है. ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए होते हैं आपके पास, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, योर रिजल्ट इज़ अवेटेड एंड यू आर अबाउट टू डू हाउस जॉब, तो ऑब्वियसली आपके पास पहले 4 सालों की DMCs की फ़ोटो कॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए. ठीक है, आपका CNIC कॉपी भी आप रख लें एहतियातन. ठीक है, देन मैंने इसमें बिकॉज आई वॉज गाइडेड बाई समवन, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी एक CV बनाएं. ठीक है, एंड दैट वुड गिव अ रियली गुड इम्प्रेशन इफ़ यू आर गोइंग टू एनी हॉस्पिटल. बिफोर रिजेक्टिंग वो, एक बार अगर आपकी CV भी बनी होगी ना, दे वुड कंसिडर इट, दे वुड रीड इट. अच्छा, ये इस तरह का स्टूडेंट है और इसकी ये डिटेल्स हैं, तो क्या हमें इसको यहाँ पे रखना चाहिए. अगर उनके पास बहुत लिमिटेड भी स्लॉट्स होंगे तो दे वुड वंस थिंक टू रिजेक्ट यू. ठीक है, अब उसमें CV लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है. ठीक है, देन आपने लिखना है अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर. ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया. ठीक है, बिकॉज आई एम ए यूट्यूबर, आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, so I have mentioned my YouTube channel and its link as well. अच्छा,
इससे पहले भी आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, देन अपनी ईमेल एंड अपना एड्रेस। उसके बाद अगर कोई इस तरह की आपके पास चीज़ है तो वो भी आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। देन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने क्लियरली डिफ़ाइन करना है इन योर CV, ठीक है। लाइक आई हैव रिटन दैट a confident communicator and a dedicated healthcare professional looking forward to gain experience and learn in the biggest tertiary care hospital, ठीक है। बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यू हॉस्पिटल, तो मैंने इस तरह से उस लिहाज से जो है ऑब्जेक्टिव को मेंशन कर दिया है, ठीक है। देन जो आपकी एजुकेशन है वो सारी आपने यहाँ पे एजुकेशन वाले पोर्शन में सारी लिखनी होती है, लाइक मैट्रिक, उसके मार्क्स एंड फ्रॉम वेयर यू हैव डन, देन FSC वो आपने कहाँ से की, उसके मार्क्स, MBBS के अभी तक जितने ईयर्स के रिज़ल्ट्स आउट हो गए हैं उनके मार्क्स आपने लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। देन उसके बाद वार्ड या रोटेशंस, ठीक है, जो आपने अटेंड की हुई हैं स्पेशली, वो सारी आपने मोस्टली लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। या आप जो अटेंड करना चाहते हैं उनको मतलब पहले लिख के, और बाकी जितनी आपने अटेंड की हुई हैं अपने पास्ट ईयर्स में उन सारों को भी मेंशन कर देना। लाइक आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं और 4th ईयर ENT ऑफ्थेमोलॉजी एंड बाकी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पीज सर्जरी, गाइनियोब्स एंड मेडिसिन, और इस तरह से ना आपने सारा जो सब्जेक्ट्स हैं आपके और 4th या फाइनल ईयर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली उनकी वार्ड्स भी होती हैं, तो वो सारी वार्ड्स ऑब्वियसली आपने अटेंड की हैं, तो वो भी आपने लिख देना है कि यानी ये वार्ड रोटेशंस आपने अटेंड की हैं टू गिव अ गुड इंप्रेशन, ठीक है, कि इस बंदे ने ये सारी रोटेशंस या वार्ड्स अटेंड किए, उसको थोड़ा बहुत नाम है, ठीक है। देन आपकी जो कोर्सेज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी जितनी भी हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया है वो आपने मेंशन करना है। तो मेरी मेन जो एक्टिविटी थी दैट वाज ऑफ यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो आई हैव मेंशनड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माय यूट्यूब चैनल। आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल वेयर आई मेक वीडियोज़ ऑन वेरियस थ्योरेटिकल एंड clinical topics related to the course of MBBS and helping hundreds of medical students. नेक्स्ट आई रोट कि मैंने क्योंकि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की थी, मैंने उनके बारे में लिखा है आई हैव द प्रूफ। अच्छा, जो भी आप चीज़ मेंशन करेंगे उसका आपके पास प्रूफ लाजमी होना चाहिए, ठीक है, वरना आपने मेंशन नहीं करनी, बिकॉज इन द एंड व्हेन दे आर लुकिंग योर CV दे वुड आस्क यू फॉर द प्रूफ, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें मेंशन की मेरे पास इनका कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई प्रूफ लाजमी है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे ये जो हाउ टू इंटरप्रेट ECG वाली एक वर्कशॉप थी वो अटेंड की थी, इसके अलावा कॉमन कार्डियक इमरजेंसीज़ की वर्कशॉप अटेंड की थी, और ये डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूरो ट्रॉमा इमरजेंसीज़ की वर्कशॉप थी। ये सारी नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने कंडक्ट करवाई थी, तो वो ये तीनों जो है मैंने अटेंड की थी और मेरे पास इनका सर्टिफिकेट है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ब्रेन रश प्रोग्राम था, मेडिकल कंपटीशन था बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका भी सर्टिफिकेट क्योंकि था तो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। देन आई हैव अ सर्टिफिकेट फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 कोर्स एज वेल, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। एंड देन CNS इन्फेक्शंस एंड GBS वेबिनार में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज अगेन अ वेबिनार एंड इसका मेरे पास सर्टिफिकेट था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर Dr. सो मैंने इन सारी चीज़ों का जिनका मेरे पास सर्टिफिकेट्स या कोई प्रूफ था मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि आपने किस तरह से जो मेन चीज़ें हैं वो आपने इंश्योर करनी आपके पास हो। एक तो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड कोशिश करें हैंड रिटन ना हो, क्योंकि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं दे रिजेक्ट हैंड रिटन एप्लीकेशंस, दे जस्ट टेक प्रिंटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। सो टाइप इट एंड प्रिंट इट आउट। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन हो, ठीक है। CV कोशिश करें कि बना लें, ठीक है, इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है। देन मेन एप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर आपके पास जो आपकी जितनी भी लास्ट ईयर्स की DMCs हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ लाजमी आपके पास होनी चाहिए, एंड CNIC की भी फ़ोटो कॉपी रख लें, ठीक है, एहतियातन। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास हर सूरत होने चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। एंड मैं ना इससे पहले जो मैंने जितने भी हॉस्पिटल्स की ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में जो डिटेल्स थी ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स, वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। सो कोशिश करें कि वो पहले देख लें, एंड देन वॉच दिस एज वेल, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एज वेल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।